ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਨਾ ਗੋਇਲ ਤੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਬਸ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 2 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਐਸਐਸਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਐਸਟੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਡੀਪੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਥ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਟਿਕ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੀਨਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੈਗ ਵਰਡਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ CDP ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। CDP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ CDP 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਫੇਵਰੇਟ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ CTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ, ਆਹ 3 ਥਿਓਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਆਲ ਟਾਈਮ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਓਰੀ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੀ ਐਂਡ ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਓਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਓਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੈਵਲਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 6 ਸਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 3rd ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ।
ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ, ਓਰਲ ਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਦੈਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਊਬਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ CDP 'ਚ ਦਵਾਏਗਾ, 5 ਨੰਬਰ CDP 'ਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 5 ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਵਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੈਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੰਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ। डिफरेंस कितने आना चाहिए, स्कूल के वे ऑफ टीचिंग विच, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर विच चेंजिस लैके आन, ताकि किसी भी बच्चे को आए ना लगे भी मैं किसी पासों घट हाँ। ठीक है, चाहे वो हैंडीकैप ही है, वो सारे बच्चे इको ही क्लास विच, इको इन्वायरमेंट विच पढ़न, ते हर तरह का जिहड़ा टीचिंग लर्निंग मटीरियल है वो अवेलेबल होवे सारे बच्चों वास्ते। ठीक है, चाहे विजुअल एड्स है, ऑडियो एड्स है, एवरीथिंग। ठीक है, 5 नंबर तो तुहाडे CDP चो ये पक्के हैगे। इंग्लिश विच भी इनकलूसिव एजुकेशन च पुछया जाता है, उही चीज़ां पंजाबी लैंगुएज विच घुमा के तुहानूं पुछ लैणगे। तो मैथमैटिक्स विच भी ये एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो आह टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुसीं बिल्कुल नहीं छड्ड के जाना। नैक्सट आंदा अपनी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिहड़ियां तुहानूं मैं कराइयां सी, डिसलैक्सिया, डिसप्रैक्सिया, अफेजिया, ठीक है, ADHD करवाया सी, डिसकैलक्यूलिया, ये सारियां की है बहुत इंपॉर्टेंट ने, तीनों दी तीनों विच तुहानूं, चाहे CDP है, चाहे इंग्लिश है, चाहे पंजाबी है, ये समझ लो तुसीं 3 नंबर मिनीमम ये पक्के पक्के है। तुहानूं पुछणगे जरूर भी, तुहानूं सिचुएशन दे देणगे, फिर पुछणगे किहड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपां चंगी तरह डिस्कस कीतियां होईयां ने लर्निंग डिसेबिलिटीज़। उदों बाद गल आंदी है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 दी। ठीक है, ये जिहड़े हाईलाइटेड पॉइंट्स ने, बस तुसीं वो थोड़ा गो थ्रू हो जाओ इन्हां तों, ते उहदे नाल की है तुहाडी ये जिहड़ी एक्ट है ये रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये आपां ही नहीं कहते भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर आए हैं जे 1-2 क्वेश्चन भी तुसीं ये चीज़ां पढ़ लैंदे हो ना, ओवरव्यू जिहड़े 1-2 क्वेश्चन ये आने ने, वो तुहाडे नंबर पक्के हो जाएंगे। दैन गल आंदी है NCF 2005 दी। देखो वैसे जिहड़ा लेटेस्ट है 2022 NCF 2022 जिहड़ा हैगा वो भी आ चुका है। ये बेस्ड कीते है NEP 2020 ते बेस्ड है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे। NCF 2005 उत्ते क्वेश्चनस आंदे नहीं। दिन गल आंदी है जेंडर दी। जेंडर विच किहड़ी चीज़ां हुंदियां, जिवें जेंडर स्टीरियोटाइप, ये तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है, जेंडर बायसनैस की हुंदी है, फिर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, ये सारिया चीज़ां, ये 4 जिहड़े पॉइंट्स ने जेंडर के बेसिस ते ये आंदे ने। जिवें फिजिकल जिहड़ी एक्टिविटीज़ है वो जनरली कहंदे आ भी मेल्स नूं दे दो, या फिर बुक्स विच तुहानूं बायसनैस शो हुंदी है। फीमेल्स किचन विच दिखाईयां जांदियां ने, ते जिहड़े मेल्स हुंदे ने वो सूटकेस चक के कोई फील्ड जॉब ते जांदे आ, कोई ऑफिस वर्क, इदां बायसनैस कीती जांदी है। ठीक है, इदां दी सिचुएशन तुहानूं फिर पुछणगे की है ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर बायस है, तो वो आपां उस बेसिस ते इहदे आंसर देने। क्लीयर हो गया ये चीज़। नैक्सट हैगा मोटिवेशन। मोटिवेशन देखो 2 तरह की होंगी है, इंट्रेंसिक ते एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये वैसे ज़्यादा कोई मतलब 2 नंबर तुम ये लगा लो मोटिवेशन दे। ठीक है, लेकिन ये चो भी सिर्फ आपां डायरैक्ट थ्योरीज दे नहीं, वैसे पूछा जाता है कि बच्चा जे उहदे फुल मार्क्स भी आ जाते हैं या फिर उन्होंने चंगे नंबर मिल जाते हैं, तो वो वास्ते सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है, तो उत्थे इंपॉर्टेंट की होएगी बच्चे वास्ते, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होएगी। क्योंकि जब आप बच्चे मोटिवेट ना करांगे तो सैटिस्फाई हो जाएगा कि मेरे नंबर आ गए जी, बस ठीक है, अगे ज़्यादा मेहनत करने की लोड़ नहीं। लेकिन मोटिवेट करना जरूरी है बच्चे को, ताकि जिहड़ी सिचुएशन ते वो अज खड़ा है वो होर उपर राइज कर सके। ठीक है, तो ये जड़ियाँ 1-2 थ्योरीज ने, वैसे मैं तुहानूं सारियां ही करवाइयां हुई ने, तो तुसीं उहदे गो थ्रू हो सकते हो। तो एक देखो CDP दी मैं तुहाडे नाल ना सारी जिहड़ी थ्योरीज ने उहदी एक वीडियो विच सारियां थ्योरीज किने दित्तियां ने, ठीक है, किने करवाइयां ने, उहदे सारे बेसिक कॉन्सैप्ट्स कंप्लीट बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीके नाल तुहानूं समझाए सी। वो वीडियो अज तुसीं जरूर देख लिओ, क्योंकि CDP दी सारियां थ्योरीज जिहड़ियां हैगियां ने वो तुहाडीआं एक वीडियो विच रिवाइज हो जाणगीआं। ठीक है जी, एक वीडियो विच रिवाइज हो जाएंगे। इत्थे तुसीं देख सकते हो जिहड़ा ये थंबनेल ब्लिंक कर रहा है, इहदा डिस्क्रिप्शन विच मैं लिंक दे दूँगी, तुसीं ये सारियां थ्योरीज एक वीडियो विच रिवाइज कर सकते हो। ठीक है जी,
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। देखो नैक्सट हैगा अपने को लैंगुएज एक्विजिशन एंड लर्निंग। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ, ਸੇਮ ਸਿਲੇਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ LSRW, ਲਿਸਨ ਸਪੀਕ ਰੀਡ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ LSRW ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ CDP 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 5-6 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ। ਦੈਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਂਡ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ CDP ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ SST ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ CDP 'ਚ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ। CDP ਤਾਂ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ, 10 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ, 10 ਦੀ ਮੈਥਸ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 10 ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ 20 ਜਾਂ 25 ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ SST 'ਚੋਂ। ਆਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ 30, 40, 50, 60, 70 ਅਤੇ 85, ਯਾਨੀ ਕਿ 85 ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, 85 ਮਾਰਕਸ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ PS ਸੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾਓ ਕਿ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ CDP 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਇੰਸ SST 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਂਡ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਰੈਮੇਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਪੇਟ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਟਸਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 to 1 ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਜੀ TLM, ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏਡਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ, ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਹੌਚ ਪੌਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰੇ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ?
एक्टिविटी, ये तो चलो मैथड्स आ गए। आ की होंगे टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ, ਅਬੈਕਸ, ਡਾਟ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਬਲੌਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ मैथमैटिक्स के अलग तो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स ने जिहदे थ्रू बच्चों को मैथमैटिक्स सिखाई जाती है। जिवें डेसीमल्स वास्ते भी सीगे, आपां काफ़ी सारे एक ही वीडियो में डिस्कस किए सी, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो एक वैन हेल लैवल डायग्राम सीगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी तुसीं जरूर करके जानी है मैथमैटिक्स, ठीक है जी। टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स पता लग गए। जनरली आह वाले होंगे, जब मैथमैटिक्स की गल करिए तो वो आह वाले होंगे ने, क्लीयर हो गया। इदों बाद हैगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, किने दिती सी है बेंजामिन ब्लूम ने। इहदे विच अपने कोले 3 डोमेन्स आपां नूं देखण नूं मिलदियां सी, अफैक्टिव डोमेन, ठीक है, कोगनीटिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। हुण जिहड़ी अफैक्टिव डोमेन है वो किहदे नाल रिलेटिड है, इमोशनल आसपैक्ट नाल रिलेटिड है। जिहड़ी हैगी है कोगनीटिव डोमेन वो किहदे नाल, इहनूं आपां कह दिंदे इमोशनल या फिर हार्ट नाल रिलेटिड हुंदियां ने, ठीक है। जिहड़ी कोगनीटिव डोमेन है वो किहदे नाल रिलेटिड है, माइंड नाल, थिंकिंग नाल। कोई भी गल करते आपां रीजनिंग, कोई भी तर्क करते हैं, जिवें रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सारियां चीज़ां कोगनीटिव डोमेन के अंदर आंदियां। उस तो बाद आंदी है साइकोमोटर डोमेन, जिहदे अंदर आपां कहने काइनेस्थैटिक लर्निंग, काइनेस्थैटिक लर्निंग या फिर लर्निंग बाय डूइंग, ये 3 डोमेन्स होंदी है। इनू आपां की कहने बाय हैंड, जिवें आपां कहने हत्थीं काम करो, ये की हो गया माइंड यानी कि कोगनीटिव। ये तीनों डोमेन्स कीतियां सी ते बेसिकली आपां जिहड़ियां स्टेजेस डिस्कस कीतियां सी वो कोगनीटिव दीयां स्टेजेस डिस्कस कीतियां सी, ठीक है, बॉटम टू अप अप्रोच जिहदी हुंदी है। क्लीयर हो गया जी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये क्वेश्चन भी तुहानूं सारियां विच देखण नूं मिलणगे, CDP, इंग्लिश, पंजाबी, मैथमैटिक्स। एक कॉमन, मैं बार बार कह रही हूँ, सारे कॉमन टॉपिक्स ने जिहड़े तुहानूं सारी पैडागोजी विच देखण नूं मिल रहे हैं। क्लीयर हो गया। उस तो बाद आंदे जी मैथड्स ऑफ टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मैथड्स ऑफ टीचिंग किन्ने वारी गल कर चुके हैं। इंडक्टिव ते डिडक्टिव सब तो ज़्यादा फेवरेट इन्हां दे 2 मैथड्स ऑफ टीचिंग ने, इंडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव की हुंदा कि पहला एग्जाम्पल दो, चलो मैं ऊपर लिख दिया। इंडक्टिव की हुंदा पहला एग्जाम्पल दो, फिर ओनू रूल वाल वधो, या फिर पहला स्पैसीफिक टू जनरल। लेकिन जो डिडक्टिव मैथड होंदा ये कहता पहला रूल दसो, जिवें आपां इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने ना, पहला रूल दसदे हैं, उहदी डेफिनेशन दिंदे आ कि टेंसिस की हुंदे आ, फिर आपां उहदी एग्जाम्पल्स करते हैं। रूल दसो यानी कि जनरल चीज़ दसो, फिर स्पैसीफिक वाल जाओ, रूल दसो फिर एग्जाम्पल वाल जाओ, ठीक है। ये चीज़ां किहदे विच हुंदियां ने, डिडक्टिव विच, आ किहदे विच हुंदी है, इंडक्टिव विच। आ चीज़ां तुसीं जरूर याद रखनी है। हर पैडागोजी विच तुहानूं मैथड्स ऑफ टीचिंग ते क्वेश्चन आऊगा ही आऊगा, चाहे किसी भी सबजैक्ट की पैडागोजी है। तुहाडे PSTET पेपर 2 दे विच लिख लो इस चीज़ नूं, ठीक है जी। अगे आंदा अपने कोले कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जिहड़ा जिवें जीन पियाजे की थ्योरी कराउण तो पहलां मैं तुहानूं कंस्ट्रक्टिविज्म भी करवाया सी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होनी चाहिए है। हुण जे आपां NCF की गल करिए या NEP 2020, मैं उरे लिखिया नहीं वैसे वो NEP 2020 है, NCF 2005 है, ये सारे की कहंदे है। जिवें एक होर सी अपने कोले कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन, इन्हां दा सब दा ना जिहड़ा बेसिक फंडा हैगा, इन्हां दा तां क्लीयर कट फंडा ही है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। यानी कि बच्चों को तुसीं कंस्ट्रक्ट करन दिओ नॉलेज, उन्हां उत्ते दबाव ना पाओ, उन्हां नूं प्रैशराइज ना करो, लेकिन उन्हां दा माइंड इस तरह फ्री रखो, बर्डन फ्री जिहड़ी लर्निंग होनी चाहिए है कि बच्चों के दिमाग ते बर्डन ना होवे, टीचर्स का डर ना होवे। तुसीं एक फैसिलीटेटर का काम करना है। ये क्वेश्चन आंदा है फैसिलीटेटर कि टीचर्स का रोल की हुंदा है क्लासरूम टीचिंग विच, कि वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, डोमीनेट करते हैं, इदा कुछ ऑप्शनस होंगे। लेकिन टीचर का रोल की हुंदा है एक फैसिलीटेटर का, कि वो तुहाडे नाल जिहड़ा कुछ टीचर नूं पता है, उन्होंने नॉलेज हैगी, तुहानूं दस दिंदे आ, तुसीं उहनूं फरदर इन्फॉर्मेशन टीचर दे दिंदे, तुसीं उहनूं नॉलेज दे फॉर्म विच कित्थे स्टोर करदे हो, अपनी माइंड विच जिहड़ा स्कीमा हुंदा ने। जिवें जीन पियाजे ने दस्सिया सी ना स्कीमा, अपनी माइंड विच एक स्कीमा हुंदा है, उत्थे आपां सारियां चीज़ां स्टोर करदे हां। उत्थे की हुंदा है
ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਜਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਿਸਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਸਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਤੇ NEP 2020 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੋਇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੋਇਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੂ ਨੋਟ ਰੀਡ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੋ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨਸ, डायरैक्ट क्वेश्चंस रीड करने स्टार्ट करो, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, फिर सब तो पहले पैराग्राफ विच देखोगे किवें कीवर्ड्स, क्वेश्चन विच देखो कीवर्ड्स किहड़े हुंदे ने। सब तो पहला की तुहानूं कहंदे आ, ये क्वेश्चन किस तरह आंदा है, व्हाट, वैन, वेयर, वाई, हाउ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ क्वेश्चंस, ठीक है। जो पूछ लैन वॉट, वैन, वेयर, ये तो है ईजी क्वेश्चन, यानी कि डायरैक्ट तकरीबन तुहानूं पैसेज विच मिल जाएंगे। लेकिन गल आती है कि वाई, हाउ, ठीक है, जिथे अपनी रीजनिंग अपनी खुद की सोच देखनी पैंदी है, उत्थों तुहानूं थोड़ा बहुत देखो पैसेज रीड करना पएगा। हुण देखो जिहड़ी ट्रिक्स हुंदी है, कोई भी आपां चीज़ डिस्कस करते हैं ना, उहदे एक्सैप्शनल केसिस हमेशा हुंदे है। जे तुहाडे कोल कोई अपनी जनरल डिस्कशन तो अलावा ਅੱਡ कोई चीज़ आ जाती है तो उत्थे तुहानूं आपदी रीडिंग करनी पैनी है पैसेज की थोड़ी बहुत, पर वो भी तुसीं तां करोगे जो तुहाडे कोल टाइम हैगा। आए नहीं कि तुहाडे बाकी सैक्शनस पए ने तो तुसीं सिर्फ पैसेज उत्ते टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुहाडा एक या दो क्वेश्चनस ने ना, तुसीं उहनूं छड्ड दो, क्योंकि तुहाडे ये दो क्वेश्चनस तुहाडे 5 या 10 मिनट खा जाणगे इत्थे ही, जे तुसीं पैसेज रीड करन लगे। फिर भी जरूरी नहीं कि तुहाडे वो सही होण। एंड ते जे तुहाडे कोल टाइम बचदा है, कोई 10-15 मिनट बचदे है, तो मैं तुहानूं दस्सिया सी क्वेश्चन बुकलैट ते ना तुसीं अपने सपोज तुहाडा ये क्वेश्चन नंबर हैगा 91, तुसीं इहनूं ना सर्कल कर लो कि ये क्वेश्चन मैं हले देखना है, मैं नहीं किता। तो क्वेश्चन बुकलैट विच देखो किहड़े क्वेश्चनस तुहाडे रहिंदे ने, उदों बिल्कुल एंड ते वो क्वेश्चनस चक्को जिहड़े तुहाडे फस रहे ने। क्योंकि जे सैशन दे जे अपने पेपर दे विच तुसीं इदां दा कुछ करन लगोगे ना, दिमाग विच हलचल हो जानी है कि हुण की करिए, ते टाइम भी स्पीडली निकल जाना है। इस करके बैटर है कि उस चीज़ नूं उत्थे ही छड्ड दो। फिर भी इहदा तरीका की है, हुण आपां सिर्फ छड्डण दी गल नहीं कर रहे, इहदा सोल्यूशन भी आपां ने लभना है। वो की है कि ਜਿਹੜੇ पैसेज या पोएम प्रीवियस ईयर पेपर्स विच आए हुए है, तुसीं उन्हां नूं जे प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 पैसेज या 2-3 पोएम्स नूं वो तुसीं प्रैक्टिस करो। बच्चे की करते हैं ना कि पेपर हुंदा है PS टैट का, तो प्रैक्टिस करते हैं C टैट के पैसेजिस की। ये तुसीं बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तुहानूं पैटर्न किवें पता लगू PS टैट के पेपर का लैवल की है या फिर ये क्वेश्चनस की आते हैं। तो तुसीं जे प्रैक्टिस करना है तो PS टैट के जिहड़े प्रीवियस पेपर्स ने बहुत ईजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो मैं भी तुहाडे नाल शेयर किए हुए हैं प्रीवियस जे पैसेज या पोएम तुसीं प्रैक्टिस करनी है, अलग एक वीडियो बना के तुसीं कितों ही लै लो, ठीक है। जिथों तुहानूं मिलदे तुसीं उत्थों ये चीज़ां चक लो प्रीवियस, उहनूं खुद सॉल्व करके देखो, उहदी स्ट्रैटेजी समझो, तो देखो उन्हां दा फॉर्मैट की है, क्वेश्चनस कित्थे कित्थे पए हुंदे ने, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं ट्रिक्स दस्सियां ने वो किहदे बेस ते है, इन्हां दे पैटर्न दे बेस ते ही है, ठीक है। कोई एक्सैप्शनल हुंदे ने जिहड़े टफ आ जांदे, उत्थे तुहानूं रीडिंग करनी पैनी है, या फिर सैकेंड ऑप्शन की है तुसीं क्वेश्चन छड्ड दो, होर कोई ऑप्शन नहीं हुंदी उत्थे, ठीक है। होर इहदा कोई शॉर्टकट नहीं हुंदा, या तो तुहानूं समझ के करना पएगा या तुसीं ट्रिक्स फॉलो करके उस चीज़ नूं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है जी। आ चीज़ क्लीयर हो गई। अगे देखिए नैक्सट अपने को आते हैं कुछ टैग वर्ड्स या फिर जिहड़ियां चीज़ां आपां ध्यान च रखनी है क्वेश्चन में, जे आ चीज़ां आ जान तुसीं इहनूं पॉजिटिव समझना तो उही ऑप्शन टिक करनी है। जे कुछ वर्ड्स इदां दे आ जान या फिर क्वेश्चन इस रिलेटेड आ जान तो वो नैगेटिव आस्पैक्ट हुंदा है, ठीक है। तो हुण देखो ये वर्ड सब तो पहला की है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट मतलब इंकलूसिव एजुकेशन की कहती है सब नूं इकट्ठे करके पढ़ाना, यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंटीग्रेटेड अप्रोच किते भी तुहानूं आ जाए तुसीं उही ऑप्शन टिक करके आनी है, ठीक है। इस तो बाद आंदा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग या फिर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, कुछ भी आंदा ये बिल्कुल एक पॉजिटिव पॉइंट है जिथे बच्चे नूं सेंटर रख के सारा कुछ डिज़ाइन किया जाता है। ये भी आपां इनकलूसिव एजुकेशन नाल भी इस चीज़ नूं रिलेट कर सकते हैं कि जिथे समावेशी शिक्षा होगी, बच्चे सारे एक जगह पर बैठ के पढ़नगे, तो उन्हां वास्ते की उदां दा एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का होवे क्लासरूम का, या फिर टीचिंग एड्स टीचिंग मटीरियल्स सारा कुछ यूज़ होवे, ब्रेल स्क्रिप्ट यूज़ होवे, जिहड़े नहीं देख सकते वो बच्चे वो डॉट्स टच करके जिहड़ा ब्रेल स्क्रिप्ट हुंदा उहदे उपर वो पढ़ सकन, नाल नाल सुन सकन, ठीक है। तो इदां दा की है चाइल्ड सेंटर्ड
अप्रोच करिकुलम होना चाहिए या फिर लर्निंग होनी चाहिए। ये पॉजिटिव टैग वर्ड सब तो पहला मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रही हाँ। उदों बाद आती है क्रिएटिव या डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिव चिल्ड्रन क्रिएटिव किहड़े हुंदे आ जिन्हां दी IQ आपां कह दिंदे जिवें गिफ्टिड हुंदे आ, किन्नी प्लस हुंदी है मैनूं कमेंट करके दसो। IQ किन्ना हुंदा क्रिएटिव या फिर आपां गिफ्टिड दी गल कर दिंदे आ, है ना, वो मैनू दस दिओ कमेंट करके। इदों बाद आंदा डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिवें मैं तुहानूं पहलां भी डिस्कस कीती सी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग नूं एनहांस करना है। हर एक चीज़ चाहे तुसी RTE एक्ट की गल कर लो, NEP 2020 की गल कर लो, NCF की गल कर लो या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की गल कर लो, वो सारे की कहते कि बच्चे की थिंकिंग डाइवर्जेंट होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, ओपन एंडिड क्वेश्चनस। आ देखो इत्थे ये मैं रिलेट कर देनी हाँ। ओपन एंडिड क्वेश्चनस बच्चों को पूछो कि वो अपने व्यूज़ दे सकन। जिवें आपां कहने डिफाइन ट्रायंगल या फिर डिफाइन, ये तो हो गए क्लोज एंडिड क्वेश्चनस जिथे सिर्फ रटी रटाइया चीज़ां उन्होंने दसनिया ने, एक लिमिटेड चीज़ दसनी है। लेकिन ओपन एंडिड क्वेश्चनस होंगे है कि तुहाडा इस वास्ते की व्यू है, हर बच्चा आपदे आपदी राय दे सकता है। ठीक है, इदां दे क्वेश्चनस होने चाहिए, बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग उहदे अंदरला टैलेंट निकल के बाहर आवे। दैन इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस। हुण एक क्लास में इन्ने तरह के बच्चे बैठे होंगे, हर बच्चे दे पढ़न का स्टाइल वखरा है। ठीक है, समझण का तरीका डिफरेंट है, कोई जल्दी समझ आता, कोई लेट समझदा वही चीज़ नूं। हुण मैं वीडियो तुहानूं समझा रही हाँ, कोई बच्चे 1 सेकेंड विच समझ जाणगे, हो सकदा उन्होंने प्रीवियस लैक्चर्स भी लगाए होण मेरे। ठीक है, कुछ जिहड़े न्यू स्टूडेंट्स है या फिर कुछ स्लो लर्नर्स होंगे जिन्होंने ये चीज़ां दोबारा करनियां पैंदियां, ताकि जिवें थ्योरीज़ की गल ला लो, पियाजे की थ्योरी एक बार पढ़े तो नहीं समझ आई बच्चों, कईयां नूं एक बार च ही सारी समझ आ जाती है ना, याद भी हो जाती है। ये डिपेंड करता, हर बच्चा एक डिफरेंट परसन है, यूनीक आइडेंटिटी है। चाहे इमोशनली गल कर लो, साइकोलॉजिकली गल कर लो, फिजिकली गल कर लो या फिर दिमागी तौर पर। ठीक है, ये चीज़ां असैप्ट करके ही क्लास में टीचर्स नूं पढ़ाना चाहिए। अपनी स्पीड है, अपना कंटेंट है, उस हिसाब नाल बच्चों नूं पढ़ाना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसिस होंगे ने क्लास में, सारे बच्चे उस चीज़ तो समझ सकन। तो जोड़े इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स ने या फिर क्रिएटिव ने उन्होंने वास्ते चैलेंजिंग टास्क भी मिल जाए उन्होंने, ताकि वो पिछे ना रहन। क्लीयर हो गया। नैक्सट होंगी है मल्टीलिंगुअल अप्रोच। जिवें आपां कह दें कि 5th क्लास बच्चों मदर टंग विच भी पढ़ाया जाना चाहिए, तो दूजी इंग्लिश विच भी आपां जिवें अपनी टैक्सट बुक सारी इंग्लिश विच है, बच्चों पहला कंटेंट समझ आना चाहिए। यानी कि मदर टंग की है, ये भी एक पॉजिटिव टैगवर्ड है। मल्टीलिंगुअल अप्रोच की है, एक पॉजिटिव टैगवर्ड है कि एक लैंगुएज विच नहीं, बच्चों जिवें समझ आता तुसीं उवें पढ़ाओ। नैक्सट इज़ कोऑपरेशन, कोलैबोरेटिव वर्क। ये जिथे भी आ जाए तुसीं इहनूं टिक कर देना, क्योंकि ये चीज़ां पॉजिटिव टैगवर्ड्स ने। हर चीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि तुसी इकट्ठे मिल के काम करो, तुहाडे विच किन्नियां क्वालिटीज़ आनियां, एक दूजे तो सीखोगे, रिलाई करना सीखोगे एक दूसरे उत्ते, रिस्पोंसिबिलिटी सीखोगे। ठीक है, पॉजिटिव टैगवर्ड है। दैन इज़ ब्रेन स्टॉमिंग यानी कि सोल्यूशन खुद लभना, ये भी की हो गया एक तरह नाल डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही पार्ट हो गया। दैन इज़ जिमें एक्टिविटी मैथड, जिमें मैथड्स ऑफ टीचिंग मैं तुहानूं कराए सी, जे आपां छोटी क्लासिस की गल करिए तो उत्थे बच्चे किवें सीखते हैं एक्टिविटी मैथड नाल। जिमें वाइगोस्की की कहते हैं इंट्रैक्शन करके आपां ज़्यादा बेहतर तरीके नाल सीख सकते हैं। बच्चों नूं कल्लियां नूं बिठाओगे वो बोर भी होणगे, जिथे कहने आपां 4-5 बच्चे आ उत्थे उन्हां नूं इंजॉयमेंट भी हुंदी है, तो कॉम्पीटिशन थोड़ा बहुत उन्होंने आए होंगे भी एक दूजे तो सीखण नूं भी मिलता है। ठीक है, एक्टिविटी है या फिर इंट्रैक्शन है, एक ही है पॉजिटिव टैगवर्ड्स ने। हुण एक होर चीज़ जिहड़ी मैं उहदे लिखी है, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। ਇਹਦਾ मतलब की है, हुण अपने कोले तुहानूं पता है 4 ऑप्शनस दित्तियां हुंदियां ने, 4 ऑप्शनस विच कई वारी हुण की दे दिंदे तुहानूं ऑल ऑफ दी अबव। 60 to 70% तुसीं समझ लो चांसिस, 70 की 80% चांसिस होंगे है कि जी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव है ना, ये करैक्ट होगी। जो तुहानूं दोनों दित्तियां हुई ना, नन ऑफ दी अबव तो ऑल ऑफ दी अबव, तो वो चांसिस ज़्यादा ऑल ऑफ दी अबव दे। जे तुसीं बिल्कुल श्योर हो कि ये नन है, इन्हां विचों कोई आंसर नहीं है, तो तुसीं इस ते टिक कर सकते हो। अदरवाइज जनरली ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव करैक्ट होंगी है। नॉर्मल क्वेश्चन विच नहीं आती, जिथे मल्टीपल सोल्यूशनस होंगे ना उत्थे आती है ऑप्शन, तो ज़्यादातर चांसिस होंगे ऑल ऑफ दी अबव। तो जिथे क्वेश्चन में ये चीज़ आ जाए ना, तुसीं इहते फोकस करो, ध्यान नाल पढ़िए ऑप्शनस भी, हो सकता आ भी सही होवे, आ भी सही होवे, आ भी सही। इट मीनस अपनी ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव की है करैक्ट होनी है। ठीक है, आ चीज़ नूं ध्यान च रखियो। नैक्सट आती है पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि आपां एक दूजे तो सीखते हैं, बच्चे एक दूजे नूं सिखाते हैं। यही की है अपने जिवें आपां NCF की भी गल की सी, NEP की भी गल की सी, पीयर ट्यूटरिंग या फिर पीयर असैसमेंट नूं ओह की मनते हैं, फॉलो करते हैं। ये भी की है एक
पॉजिटिव टैग वर्ड है। दैन इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन मैं तुहानूं दस ही चुकी हाँ। उदों बाद आंदा जी मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करना, सिर्फ बच्चों ही नहीं टीचर्स को भी मोटिवेट करना। जिवें तुहाडे लाइक्स ते शेयर्स जिहड़े ने मैनूं बहुत मोटिवेट करदे, या फिर पॉजिटिव इन्ने सोहने सोहने तुसीं कमेंट्स दिंदे हो, ठीक है। ओह मेरे वास्ते की है, एक मोटिवेशन है। कल्ले तुहानूं तां नहीं मोटिवेशन चाहिए ना, सानूं भी मोटिवेशन चाहिए, टीचर्स नूं भी चाहिए है कि ओह अपना काम होर चंगे तरीके नाल कर सकन। बच्चों को मोटिवेशन चाहिए कि वो जिन्ने उन्होंने मार्क्स लए ने या फिर जिन्ना उन्होंने परफॉर्मेंस है होर बेहतर हो पान, उन्होंने मोटिवेशन चाहिए उस चीज़ वास्ते, ठीक है। तो यह भी की एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इस तो बाद जे आप गल करिए ना, जे तुहानूं आ शब्द देखने को मिल जान तो समझ लो आह एक नैगेटिव टैग वर्ड है। जे जिवें तुहानूं क्वेश्चन आते हैं ना, एक्सैप्ट, ठीक है, या फिर लिखा होंगे नॉट, आ चीज़ां तुसीं ध्यान विच रखनी है क्वेश्चन पढ़ते हुए कि किते एक्सैप्ट तो नहीं लिखा, नॉट तो नहीं लिखा, यानी कि जिहड़ा क्वेश्चन विच पूछा गया उहदे उल्ट तुसीं लभना है। जिहड़ी चीज़ तुहानूं लिखी गई है, जिवें नॉट इनकलूडिड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जिहड़ा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं हैगा तुसीं उह ते टिक करना है, यानी कि तुसीं नैगेटिव चीज़ चूज़ करनी है उत्थे, ठीक है। इस तरह तुसीं क्वेश्चन नूं देखना है। जिवें रोट मैमोराइजेशन, रोट लर्निंग, यानी कि रट्टाफिकेशन, पढ़ना, बार बार रीड करी जाओ, उन्होंने याद करी जाओ, क्रैमिंग करी जाओ, ठीक है। मैमोराइज, एक ही है नैगेटिव टैग वर्ड्स ने। दैन इज़ डोमीनेटिंग, जिवें पूछते हैं कि टीचर्स का रोल की होंदा है, डोमीनेटिंग करना या फिर इंस्ट्रक्शन देना, फैसिलिटेट करना या फिर एज ए हैल्पर, एज अ गाइड। तो फैसिलिटेट इज़ द करैक्ट ऑप्शन। डोमीनेशन का काम खत्म हो गया, डोमीनेटिंग किते नहीं होना चाहिए। हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए, माइंड फ्री होना चाहिए ताकि वो अपने व्यूज़ पेश कर सकन। दैन इज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चन या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट किहड़ी हुंदी है, जिहड़ी एक पॉइंट पर आके रुक जाती है, बस सानूं इक्को ही चीज़ पता है। डाइवर्जेंट किहड़ी हुंदी है, आ वाली, एक चीज़ तो मल्टीपल सोल्यूशंस निकालने। एक ही होगी डाइवर्जेंट, एक ही होगी कन्वर्जेंट, ठीक है जी। आ चीज़ां की ने नैगेटिव। दैन इज़ रैंकिंग, किसी को रैंक असाइन करना, बच्चों को ग्रेड देना, ये सारा की है नैगेटिव आसपैक्ट विच आंदा है, ठीक है। ये सारे जिहड़े सीगे पॉजिटिव ते नैगेटिव टैग वर्ड्स, कीवर्ड्स। इस तो बाद मैं तुहानूं दो तीन गल्लां कहना चाहूँगी कि जिहड़ा पेपर विच क्वेश्चन है, तुसीं कोई क्वेश्चन छड्ड के नहीं आना, क्योंकि नैगेटिव मार्किंग नहीं है। तुसीं कोई क्वेश्चन गलत भी टिक करिया है ना, उहदे नंबर किहड़ा कट्टणे आ तुहाडे, नैगेटिव मार्किंग नहीं हैगी, नो नैगेटिव मार्किंग। तो एक चीज़ होर कि पेपर विच जदों तुसीं क्वेश्चन करन लगोगे, कोई क्वेश्चन तुसीं छड्डते, जिहड़ा क्वेश्चन तुसीं कर रहे हो OMR शीट विच उहदा क्वेश्चन नंबर ते OMR शीट का जिहड़ा नंबर है वो जरूर चैक कर लियो, सेम होना चाहिए। जे तुसीं क्वेश्चन कर रहे हो 81, तुसीं आंसर लगाता 91, ये गलत हो जाने हैं, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटराइज्ड चैकिंग होंदी है। उन्होंने ओवल देखना है, तुसीं किहड़ा सर्कल करता, किहड़े क्वेश्चन का करता, उन्हें एज इट इज़ चक लेना है, कोई तुहाडीआं दलीलां नहीं उत्थे पेश होणीआं, ठीक है। इस करके क्वेश्चन आपदा क्वेश्चन बुकलेट ते OMR शीट ते ये मैच करके ही आंसर करियो, ठीक है जी। इस बाद जिहड़ियां अपनी थ्योरीज़ ने, जिवें CDP दियां लर्निंग दी थ्योरीज़ ने या इंटैलीजेंस दियां, हॉवर्ड गार्डनर सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटैलीजेंस की थ्योरी विच। फिर कोगनीटिव दी है, मॉरल डेवलपमेंट दी है, इमोशनल इंटैलीजेंस की थ्योरी भी हैगी है जिहड़ी आपां कीती है। ये सारियां तुसीं करके आनियां ने। ते ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। नाउ होर आपां ज़्यादा सैशनस नहीं लवांगे, हुण तुहाडे वास्ते टाइम है कि तुसीं आपदे आप इस चीज़ वास्ते तैयारी करो। तुसीं देखो तुहाडी कमी कित्थे है, उस चीज़ नूं पूरा करो। वो चीज़ां तुसीं ज़्यादा पढ़ो या थ्योरीज़ पढ़ो, ठीक है। मैराथन सैशनस जिहड़े हैगे ने वो तुसीं लगाओ सारे, ठीक है। तो उहदे नाल की है, तुहाडा सारा सिलेबस जिहड़ा हैगा वो भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो बाकी कल का पेपर जिहड़ा हैगा उहदे वास्ते चंगी तरह बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइयो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर एग्जाम। तो मैनू कमेंट करके जरूर दस्सियो किद्दां हो गया तुहाडा पेपर, ठीक है, किन्ने मार्क्स एक्सपैक्ट करते हो तुसीं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो विच। टिल दैन कीप वॉचिंग।